Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, as you know that yesterday we have completed yesterday, that means on Saturday we have completed our chapter explanation Eureka. Okay, Eureka, I think what was the name of the chapter? Yes, Eureka something. So we have completed the explanation. So today we will move forward to our book exercise. Okay, so in our book exercise we can start from the choose the correct one option. So before starting, everybody write the date, mention the date, 31st 8 2020. So everybody mention the date and listen one thing. On Saturday I have seen your work. There are so many students who have not sent their work. Only 10 students have sent their work, and Saksham second I have told you especially, but you have not sent your work. Why? What's the reason? And Shivani Yadav, what's your problem? You have also not completed your work. When I scolded you, then you send a work of science only. Why? So everybody complete your work this Saturday. I will not want to see. I don't want to see anybody is pending work. Okay? So everyone complete your work. जब हम आपको PDF टाइमली दे रहे हैं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, ऑन दैट डे वी ऑल गिव द PDF ऑन द ग्रुप. फिर भी आप वर्क नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे? तो फर्स्ट यू कंप्लीट योर वर्क एवरीबडी, या टेक सीरियसली ईच एंड एवरीथिंग. ओके, और सिस्टमेटिकली करिए. क्या कर रहे हो? किसी ने डेट नहीं मेंशन की, किसी ने ब्लैक कलर नहीं यूज़ किया, बोला है ब्लैक कलर इतनी बार, किसी ने उसको अंडरलाइन नहीं प्रॉपरली किया, किसी ने डेट नहीं मेंशन की. हाँ, तो ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो प्रॉपरली करके दीजिए. वैसे फिफ्थ क्लास आप लोग अच्छा वर्क कर रहे हो. जिन्होंने भी किया है अच्छा किया, और जिन्होंने किया नहीं है वो तो बहुत ही सुपीरियर है, उनको करना ही नहीं है. ठीक है, ओनली 10 स्टूडेंट एब्सेंट. मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने एक एक सब्जेक्ट पे टिक लगाई हुई है कि किन्होंने नहीं वर्क सेंड किया है. ठीक है, तो ऐसा ना करें. क्लियर? हाँ, सेंड कर सकते हैं आप, मुझसे परमिशन ले लीजिएगा. मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं कि मैम सेंड कर दूँ. मैं अगर ये लिख रही हूँ देन यू विल सेंड. ठीक है, क्योंकि जो लिस्ट है वो तो कंप्लीट होनी है. ठीक है, सो बी सीरियस. नाउ कम टू द चैप्टर. So before starting the exercise, everybody mention the date, and now come to the exercise. Choose the correct one. As I have explained the chapter, so you all are able. Yes, on Saturday I have not asked the question because the chapter was too lengthy, and it takes 34 to 35 minutes in only explanation of half chapter. That's why I have not asked on that day, because 40 मिनट आपका पीरियड होता है, 35 मिनट वो एक्सप्लेनेशन ही हो गया था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे थे. एंड सैटरडे को बिजी शेड्यूल भी आप लोग का रहता है, दैट्स वाई. सो टुडे आई विल आस्क क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज साइराक्यूज वॉज एट वॉर विद सिटी सिसली, कार्थेग या ग्रीक? तो किससे है? कार्थेग. नेक्स्ट वन, द यंग जनरल हु वॉज चूजन टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ साइराकस सिटी वॉज Hiero. Everybody listen, one more important thing. There are so many students who only tick here, but they forget to fill here. So it is compulsory to fill here. इसको fill करना है. ठीक है, आपको इसको भी fill करना है. So first answer Karthik, second one is Hiero. A famous mathematician and 22 years old cousin who came to rescue of the king's immediate problem was. What was the problem? Who came to solve the problem? Who was he? Archimedes. Okay, Archimedes. I have found it in Greek language is, क्या mean होता है? Everybody knows. I have found it means Eureka. Okay. Next, true false. Write T for true and F for false. First one is Hiero was the young and clever king of Syracuse. Syracuse का जो यंग और क्लेवर किंग कौन बना था? हायरो. सो ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू. यहीं पे लिख दो. हायरो ran in the streets of Syracuse naked saying यूरेका यूरेका, है ना?
हायरो दौड़ के गया था स्ट्रीट में सायरक्यूज की और बोल रहा था यूरेका यूरेका। नो, या हु रैन? Archimedes. So this is wrong. False. Silver is denser than gold. False. Actually gold is denser than silver. Denser कौन ज़्यादा होता है? Gold होता है, silver नहीं होता. But here is given silver. Then the lump of gold and earth displays the same amount of water. False. सेम कहाँ? अगर सेम किया होता तो फिर कोई फॉल्ट ही नहीं होती उसकी. सेम नहीं किया था. द रथ वॉज नॉट मेड ऑफ प्योर गोल्ड. जो रथ थी वो प्योर गोल्ड की नहीं बनी थी. दैट वॉज ट्रू. ठीक है, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एनी प्रॉब्लम? सो एज यू हैव सीन, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड इज फॉल्स, फोर्थ वन इज फॉल्स एंड फिफ्थ इज ट्रू. क्लियर? नेक्स्ट exercise, reporting verb. Okay, as you know what a verb सारे जानते हो. जैसे कोई भी वर्ब हम उठा के ले सकते हैं. ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर अ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ अ वर्ब. अब रिपोर्टिंग वर्ब ये होती हैं जो किसी को कोई बात बोलने के लिए यूज़ की जाती हैं. सच है, जैसे कि कौन कौन सी होती है रिपोर्टिंग वर्ब? जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, से, टेल, बिलीव, ठीक है, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड और आस्क. ये सारी क्या होती हैं? रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं. कह रहे हैं इन इंग्लिश ग्रामर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती हैं? जैसे से, टेल, बिलीव, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड और आस्क. यूज टू इंडिकेट द डिस्कोर्स दैट इज बीइंग कोटेड और पैराफ्रेज्ड. क्या होता है? किसी जो पैरा में चीज़ होती है उसको इंडिकेट करने के लिए. ठीक है, कोई कोटेड चीज़ होती है ना, कोट टाइप का लिखा होता है इन्वर्टेड कॉमा में, क्लोज कोई एक कोटेशन आप बोल सकते हो, एक स्टेटमेंट आप बोल सकते हो. जो चीज़ें कोटेशन के अंदर एज ए स्टेटमेंट होती हैं तो उनको बोलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन वर्ब, और इसे हम कम्युनिकेशन वर्ब भी कहते हैं. कम्युनिकेशन जो बातचीत की वर्ब होती है, ठीक है, तो हम इसे कम्युनिकेशन वर्ब भी कहते हैं. सो जैसे कि से है, और जब हम इनका पास्ट बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो जब हमारा पास्ट का होता है टेंस, पास्ट का मतलब जब ये चीज़ें पास्ट में होती हैं तो हम इनको सबको कैसे लिखते हैं? जैसे सेड हो गया, टोल्ड हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्डेड हो गया, तो इनके सबके सेकंड फॉर्म लिखते हैं. ठीक है, तो इसी तरह हमको ये भी लिखना है. सो यहाँ पे क्या दिया गया है? नीना टोल्ड हर डैड दैट शी लव्ड हिम. ठीक है, तो जो पास्ट में है हम उनकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उनको भी हम पास्ट में लिखेंगे. ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे कि फर्स्ट वन इज़, मतलब जैसे से है तो से का आप से भी यूज़ कर सकते हैं एंड टेल भी यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी हम पास्ट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट दी है ना तो पूरा सेंटेंस विल की वुड पास्ट में जाती है. ठीक है, अब वॉन सेकेंड फॉर्म होती है तो ये भी पास्ट है. तो जो पास्ट है तो हमारे टेल की क्या बन जाएगी? जो पास्ट होती है वो टेल की क्या होती है? टोल्ड होती है. ठीक है, और से की क्या होती है? सेड होती है. सो लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल. जेनी डैश दैट शी वुड ज्वाइन अस आफ्टर स्कूल क्लोजेस. तो क्या हो जाएगा? जेनी टोल्ड. आप यहाँ पे सेड भी कह सकते हैं, जेनी ने कहा, या आप टोल्ड भी लिख सकते हैं. फिर जैसे कि पर्ल टोल्ड एज दैट शी वॉन अ गोल्ड मेडल. कनिका सेड दैट शी वुड कंडक्ट अ क्लास ऑन संडे. ठीक है, आपको इनको सेकेंड मतलब पास्ट में ही लिखना है. नेक्स्ट वन इज दे टोल्ड, वेट, they told that they didn't want to meet us on Tuesday. I said her that I hated liars. तो देखिए ये सारे ही पास्ट में सेंटेंस थे पूरे, इसलिए इनकी हमने टेल या से नहीं लिखी. इनको हम कहाँ ले गए? पास्ट में. जैसे टेल का हमने टोल्ड करा या से का हमने सेड किया. ठीक है, आप से मतलब से भी मान सकते थे हर सेंटेंस में, कहा ही सेंस में क्योंकि आ रहा है, तो आप सेड भी जहाँ लिखे हो तो सही है, टोल्ड भी लिखा है तो सही है. दैट इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज वी कैन सी a question we ask at the end of the statement to see whether the listener agrees with what we say is called a question tag.
सपोज इन हिंदी लिसन, जैसे मैंने कहा तुमने वर्क कर लिया है कंप्लीट, नहीं किया है, क्या नहीं किया है? तो ये क्या हो गया कि जब हमें कोई क्वेश्चन बोलते हैं, फिर ये कंफर्म करने के लिए कि लिसनर जो सुनने वाले, जैसे तुम लोग नहीं सुनते हो जब मैं वर्क के लिए पूछती हूँ, आप लोग नहीं सुनते हैं ना, आप हमेशा उसको अवॉइड कर देते हैं। तो उसको कंफर्म करने के लिए जो ये बोला जाता है, फिर उसमें एक एज अ क्वेश्चन चीज़ें बोली जाती हैं। आ क्वेश्चन भी आस्क्ड एट द एंड ऑफ द, एक क्वेश्चन जो कि हम स्टेटमेंट के एंड में बोलते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि लिसनर मेरी बात से एग्री है या नहीं, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा क्वेश्चन टैग कहलाता है। सो अ क्वेश्चन वी आस्क एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट टू सी वेदर द लिसनर एग्रीज विद व्हाट वी से इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। वी रिपीट द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द सब्जेक्ट इन इट्स प्रोनाउन फॉर्म। ठीक है, हम ऑक्सिलरी वर्ब जानते हो ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारी होती हैं। वी रिपीट द ऑक्सिलरी वर्ब, हम इसमें क्या करते हैं, ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है उसको, हाँ, शैल, शुड, कैन, कुड, ये सारी ऑक्सिलरी होती हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब एंड द सब्जेक्ट इन इट्स प्रोनाउन फॉर्म, है ना, इनको हम रिपीट करते हैं। क्या आता है दोबारा जब क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन टैग करते हैं? एक तो जो हमारी वर्ब होती है, ठीक है, जो हमारी कौन सी वर्ब, ए वी, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इन दोनों चीज़ को हम सिर्फ रिपीट करते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब देखिए, जैसे कि एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉर्मली वी यूज़ अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग फॉर अ पॉजिटिव सेंस। अगर हमारा सेंटेंस, if our sentence is negative, then we make the question tag assertive, affirmative बनाएंगे। if our statement is affirmative और assertive, then we make negative, तब इसका हम क्या क्वेश्चन टैग बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली चीज़ क्या है कि एक कोई स्टेटमेंट आपको दिया होगा, यू हैव टू मेक इट एज अ क्वेश्चन टैग। इसका आपको क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे कहा तुमने खाना खा लिया है, क्या नहीं खाया है, तो यही मेरा क्या है, यही क्वेश्चन टैग होता है। जो मैंने बाद में बोला, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, तुमने खाना खा लिया है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब इसी स्टेटमेंट को हम कंफर्म करने के लिए कि तुमने मेरी बात सुनी है कि नहीं, तुमने ध्यान दिया है कि नहीं, देन मैंने क्या कहा, मैंने पहले क्या पूछा, तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने नहीं खाया है, तो जो मैंने बाद में सेंटेंस बोला, क्या तुमने नहीं खाया है, तो ये क्या है, मेरा क्वेश्चन टैग है। अब इसी क्वेश्चन टैग को हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट वी टेक ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे शैल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, इज, एम, आर, ठीक है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो डिड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है तो डज और डू। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं जो भी आपके सेंटेंस में आई हो। आफ्टर दैट वी यूज़ द प्रोनाउन, जो प्रोनाउन आपके सेंटेंस में आया, दैट मीन्स जो सब्जेक्ट होता है हमारे सेंटेंस का, फिर उस सब्जेक्ट का हम प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ कर देंगे। अगर किसी का नेम दिया है तो वो ही है, बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, नॉन लिविंग है तो इट, प्लूरल है कई सारे हैं तो दे, ठीक है, उसका हम प्रोनाउन वो एग्जैक्ट वो नहीं यूज़ करते हैं। फ्रेंच है तो ये लैंग्वेज है, तो यहाँ पे फ्रेंच की जगह इट आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए क्वेश्चंस क्या होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज वी शुड मेक सम मैगी, ठीक है, हमें मैगी बनानी चाहिए, हमें कुछ मैगी बनानी चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ऑक्सिलरी यहाँ पे क्या है, शुड है। सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मीन्स इसमें कहीं भी क्या नहीं है, नॉट नहीं लगा है ना, तो नेगेटिव नहीं। तो मैंने कहा था पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव एंड नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव। तो अब ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, नेगेटिव में होगा। सो वी कन्वर्ट इट इनटू द नेगेटिव। आई विल एक्सप्लेन इट इन मोर हिंदी बिकॉज इट्स अ टफ टॉपिक एंड इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड यू, कि आप समझ सको, इसलिए मैं दोनों में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट वी चेंज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। मैंने बोला था इफ़ योर सेंटेंस इज statement is positive then you convert into negative, if your statement is negative then you convert into positive। तो आपका ये देखिए, दोबारा देख लीजिए, ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है, इसको हम कहाँ करेंगे, नेगेटिव। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया था,
shall, should, shall, should, can, could, would, will, is, am, are, has, have, had, did, do, does, ये सारी आपकी वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मॉडल भी होते हैं। अब आपकी शुड है ऑक्सिलरी, तो आपका शुड है और ये नेगेटिव में जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हो गया कंप्लीट, इसके बाद कॉमा लगता है, फिर इसका क्या बनेगा, शुड का शुडंट। अब देखिए यहाँ से आपको सब्जेक्ट क्या है आपका वी, और वी ही इसका प्रोनाउन बन जाएगा, क्या हो जाएगा वी, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, शुडंट वी। ओके, लुक एट द सेकेंड, ही हैज़ ब्रॉट द प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, ही हैज़ ब्रॉट द प्रोजेक्ट फाइल। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज़, हैज़, और इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज़ंट, क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। और इसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होती है अपॉस्ट्रोफी लगा के, जैसे हैज़ नॉट का हैज़ेंट, हैव नॉट का हैवेंट, शैल नॉट का शेंट, विल नॉट का वुंट, और वुड नॉट का वुडंट, शुड नॉट का शुडंट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं। तो हमने हैज़ की क्या लिख दी, हैज़ेंट। अब प्रोनाउन यहाँ पे ही था, हमने यहाँ पे ही कॉपी कर दिया, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। नेक्स्ट, फ्रेंच लेसन वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब वॉज का है तो हम पहले वॉज उठाएंगे, ऑक्सिलरी हमारी क्या है वॉज, तो वॉज का हो गया वॉजेंट, और फ्रेंच लेसन है ना, तो ये क्या है, एक तरह से नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए प्रोनाउन हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने भी आपको बताया था, इट, क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही विल नॉट डिस्टर्ब मी, ही विल नॉट डिस्टर्ब मी, तो विल का क्या हो जाएगा, वुडन, सॉरी विल का ये नेगेटिव में दिया है ना। अब देखिए ये फर्स्ट आपका है जो नेगेटिव में, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में, तो विल नॉट है तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, विल। अब एंटी नहीं लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे, विल, विल, और यहाँ पे ही है प्रोनाउन तो ही लिख के क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है द गर्ल्स हैवेंट अराइव्ड, ठीक है, तो हैवेंट है तो हैवेंट का अब वहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, बिकॉज हेयर इज गिवन नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, हैव, और द गर्ल्स क्या बन जाएगा, द गर्ल्स क्या हो जाएगा, दे, सो क्या हो जाएगा, हैव दे। फिर ही वेंट फॉर अ वॉक। अब वेंट सेकेंड फॉर्म होती है, आपको पता है पास्ट जो सिंपल पास्ट टेंस बनता है उसकी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, डिड होती है, और ये मतलब आपको अफर्मेटिव में दिया है तो इसका वो क्या बनेगा, नेगेटिव, नेगेटिव क्या बनेगा, डिडंट, ठीक है, डिडंट, डिडंट क्या हो जाएगा, ही। फिर देखिए द ट्रेन डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, तो डिड नॉट है, डिड नॉट यानी कि नेगेटिव दिया है तो हम इसका असर्टिव क्या बनाएंगे, डिड, और द ट्रेन का क्या हो जाए, इट, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मैंने वैसे क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार में नहीं समझ में आया so you all will see this video again and again but complete this. So today you all will complete this exercise. आज आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ओके। So first page this, second page this and third page this, ये आपको आज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, after that everybody write the date on your notebook and write the activity. What is the activity? Draw an activity related to Archimedes law. Archimedes के law से related activity क्या है? So आप सुन लीजिए, आप क्या बना सकते हैं, वाटर मतलब समुद्र बना दिया, सी, ठीक है, वाटर मतलब ढेर सारा बना दिया, और ऊपर एक क्या बना दी हमने, शीप बना दी, ठीक है, शीप बना दी, ठीक है, शीप पानी का जो जहाज होता है बड़ा सा, तो ये भी किस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। या आपने क्या किया, एक टब लिया, ठीक है, यू हैव टेकन अ टब, और इस पे आपने क्या किया, बोल, एक बोल डाल दी, ठीक है। सो यू कैन शो द आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाय दीज एक्टिविटीज़, या इसके जो बॉल डाल दी वाटर में, या मार्बल्स वाटर में आपने शो कर दिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू ऑल विल शो इन योर वाटर में ही आपको शो करनी है। तो अगर आप शीप बनाते हैं तो वो ब्यूटीफुल लगेगा ज़्यादा, ठीक है, तो समुद्र में जैसे कि नहीं सी पानी के जहाज चलते हैं बड़े बड़े से, तो आपको वो बनाने हैं, ठीक है। और या तो आप एक टब में या एक बकेट में कि आपने एक बॉल को डाला है और बॉल की क्या पोजीशन है, ठीक है, बॉल की, तो आप यू ऑल विल ड्रॉ दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी क्लियर हो गई। सो ड्रॉ एन एक्टिविटी रिलेटेड टू द आर्किमिडीज लॉ, और कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। आर्किमिडीज लॉ की जो है आपको
एक्टिविटी करनी है. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो योर टुडेज वर्क इज एक्सरसाइज. इफ यू आर अनएबल टू राइट द एक्सरसाइज, then you all only listen the exercise carefully, but when you will get the PDF, then you all will complete your work. Okay, but you all will draw activity today. एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं, आपने सुन लिया आपको क्या बनाना है, अब बस इतना ही तो लिखना था. नहीं भी लिख पा रहे हैं तो आप एक्टिविटी हेडिंग डाल करके लिख लेंगे. जब PDF मिलेगी देन यू विल राइट दिस हेडिंग, बट यू हैव टू ड्रॉ द एक्टिविटी. आप एक्टिविटी बहुत अच्छी सी बना के दिखाएंगे. दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एनी प्रॉब्लम? Okay, so thank you for the today. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.